ہم دوستوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے چہرے پہ پھنسی ہے، میرے چہرے پہ پھنسی ہے۔ ہم اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں، میرے چہرے پہ پھنسی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے چہرے کی پھنسی لے کر اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں جاتے، اسکول نہیں جاتے، کالج نہیں جاتے، تو مجھے بتاؤ، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، نشے اور جوے سے بچنے کا انعام کیا ہے اور نہ بچنے والوں کا نقصان کیا ہے، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو اجتماعات میں آتے ہیں وہ نشہ کرنے والے لوگ اکثر نہیں ہوتے، وہ جوا کھیلنے والے لوگ نہیں ہوتے، مگر بات یہ ہے مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، نہ اور کسی اور تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کر کے اللہ سے امید کرتے ہیں جن دلوں کو ان آواز کی ضرورت ہے، جن کانوں کو ان آواز کی ضرورت ہے، اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہنچا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھو، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک کے دین کے لباس میں ڈھپا ہوا ہوتا ہے، انسان اس وقت تک کے دین کے لباس میں، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، دین کے لباس میں ڈھپا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ وہ نشہ نہیں کرتا۔ جب وہ نشہ کر لیتا ہے، جب وہ شراب پی لیتا ہے، اللہ اس سے دین کا لباس چھین لیتا ہے، اللہ اس سے دین کا لباس اتار لیتا ہے اور اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا شیطان صرف اس کا دوست نہیں ہو جاتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اس کی آنکھ بن جاتا ہے، شیطان اس کے کان بن جاتا ہے، شیطان اس کی زبان بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ حدیث بالکل اس حدیث سے جو ہے وہ ملتی نظر آ رہی ہے جو بخاری شریف میں کتاب الزہد میں ہے۔ بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کان ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ نوافل کی کثرت کرنے والا خدا کا دوست بن جاتا ہے اور شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، شیطان اس کے کان بنتا ہے، شیطان اس کی آنکھ بنتا ہے، شیطان اس کی زبان بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا دوست ہو جاتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج لوگ یہ سوچتے ہیں ہم کچھ بھی کریں ہم پر عذاب نہیں آنے والا۔ یاد رکھنا اس امت پر اجتماعی عذاب کبھی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مگر دھیان سے سنو، جو ہے وہ کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی بستیوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، بستیاں زمین میں دھسا دی جائے گی، لوگوں کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بستیاں زمین میں دھسے گی، بستیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جائے گی، چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب نشہ کثرت سے کیا جائے گا تو بستیاں زمین میں دھسا دی جائے گی۔ اپنی بستیوں سے محبت کرنے والوں، اپنے گھروں سے محبت کرنے والوں، اپنی بستیوں سے پیار کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی سچی سچی زبان سے سن لو، بستیوں کی حفاظت کرنے والوں، اگر نشے پر کنٹرول نہیں کرو گے تو ان بستیوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، بستیاں اجاڑ دی جائے گی۔ اور یاد رکھنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین ہیں، تم اپنی مرضی سے نہ سوچو۔ صرف بستیاں دھسائی نہیں جا رہی ہے، آج اگر ہمارے گھروں کے اوپر اللہ اکبر بلڈوزر چل رہے ہیں تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ذریعہ کوئی اور ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی چلتی ہوئی تلوار کی زبان کی تاثیر نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے گھروں سے بڑا پیار ہے، ہم ظالموں کی تائید تو نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، لیکن خدائی تلوار جب اٹھتی ہے تو کبھی کبھی سبب کسی کو بنا کر اپنے محبوب کی زبان کی تکمیل کی جاتی ہے، محبوب
महबूब की जबान को पूरा किया जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बस्तियां धसेगी तो धसेगी, और यहां तक फरमाया चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएंगे। वजह नशा आम हो जाएगा, म्यूजिक आम हो जाएगी, मौसीकी आम हो जाएगी, औरतों से बदकारी आम हो जाएगी। जब ये 3 गुना तुम आम होते देखना तो समझ जाना बस्तियां वीरान होगी, बस्तियां तबाह होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, आज मुसलमान नशे में भी है, आज मुसलमान अल्लाह अकबर म्यूजिक और मौसीकी तो आज के जवानों का अल्लाह अकबर महबूब मशगला बन चुका है। अल्लाह अल्लाह, शादी की महफिलों के अंदर अब तो दीनदार घरानों के अंदर में म्यूजिक सुनी जा रही है, मौसीकी सुनी जा रही है। याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शबे मेराज जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके कानों में आग का शीशा पिघला करके डाला जा रहा था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो मौसीकी सुनते थे, जो म्यूजिक सुनते थे। मुझे बताओ मेरे भाई, जो मेरे जवानों, गौर तो करो, अपने चूल्हे पे किया हुआ गरम तेल अगर ज्यादा गर्म हो जाए और हमारे कान में पड़ जाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपने गीजर का गर्म किया हुआ पानी अगर गलती से ज्यादा गर्म हो जाए, हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। मगर अल्लाह अकबर, जो नाजुक तरीन जिस्म गीजर के गर्म पानी को बर्दाश्त न कर सके, चूल्हे के गर्म तेल को बर्दाश्त न कर सके, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा या 69 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग का गरम गरम शीशा जब इस नाजुक कान में डाला जाएगा सिर्फ म्यूजिक की वजह से, मौसीकी की वजह से, उस वक्त हमारा क्या बनेगा? है कोई बंदा जो खुदा के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो? अल्लाह अकबर, वो जहन्नम का शदीद तरीन अजाब जिसके बारे में मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया, जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे। जरा तसव्वुर तो करो, अपने आप पे रहम तो करो। आखिर म्यूजिक में मिलता क्या है? आखिर मौसीकी में मिलता क्या है? अल्लाह अकबर, है बर्दाश्त करने की ताकत, है बर्दाश्त करने की कुव्वत। मेरे भाई ये तो गरम तेल की बात है, अगर जोर से पटाखे की आवाज कान के करीब आए तो हमारा कान उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। इतना कमजोर है इंसान, और खुदा के गजब को चैलेंज करता है, अल्लाह के अजाब को चैलेंज करता है। नहीं नहीं, हम में से कोई भी उसके अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां पहाड़ पिघल जाएंगे, ये 5-6 फुट के वजूद का क्या बनेगा? मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, उसका अजाब बहुत सख्त है, उसके अजाब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमीन धसाई जाएगी। और फिर सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, ये चेहरे सूअर और बंदर की तरह, नशे की वजह से, मौसीकी की वजह से, बदकारी की वजह से। और ये भी याद रखना, इस हदीस की शरह करते हुए मुहद्दिसीन लिखते हैं, अगर नशा करने वालों की सूरतें दुनिया में नहीं बदली तो कयामत के दिन उनकी शक्लें जरूर बदलेगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में नशा किया और बगैर तौबा के मर गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब वो अपनी कब्र से उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, चेहरे पे अगर फुंसी निकल आए, हम दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं कि मेरे चेहरे पे फुंसी है, मेरे चेहरे पे फुंसी है। हम स्कूल जाना छोड़ देते हैं, मेरे चेहरे पे फुंसी है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जब हम अपने चेहरे की फुंसी लेकर अपने दोस्तों की महफिल में नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तो मुझे बताओ अगर अल्लाह न करे नशा करने की वजह से
सूवर की तरह चेहरा हो गया, बंदर की तरह चेहरा हो गया, तो मेरे भाइयों बताइए तो सही, हम अल्लाह की बारगाह में ये मुंह लेकर के कैसे जाएंगे? रसूलुल्लाह की बारगाह में ये मुंह लेकर के कैसे जाएंगे? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशा करने वालों से कितना नाराज है, कितने खफा हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जानते हैं कि नशा बहुत बदतरीन चीज, बुराइयों की जड़ को नशा कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम और सहाबा बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे कि इस उम्मत में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह इस उम्मत में कौन? किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये। इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है। तो उतने में हजरत सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को बुला कर लाओ, इस बारे में वो ज्यादा जानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, वरना उनसे पूछ करके आओ कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह इस उम्मत में शिर्क के बाद अगर कोई है तो वो नशा है। नशे से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। सबको बहुत हैरत हुई कि नशा सबसे बड़ा गुनाह। तो हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया बुलाओ उसको, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को बुला के लाओ और उनसे पूछो कि इसकी, इसलिए कि फारूक आज़म के सामने फतवा देना कोई मामूली बात तो थी नहीं। फारूक आज़म फिर फारूक आज़म है। तो फारूक आज़म ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को बुला करके लाओ और उनसे पूछो कि वो दलील दे कि आखिर इस उम्मत में शिर्क के बाद नशा सबसे बड़ा गुनाह कैसे है। तो अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अब क्या सुना, जरा उसको गौर से सुन लें। अल्लाह करे मेरी कौम के जवान इस लानत से निकले, ये जो उलमा तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर हर महफिल में बेचैनी के साथ कह रहे हैं कि खुदा के लिए नशे से बाहर आओ, खुदा के लिए नशे से बाहर आओ, खुदा के लिए नशे से बाहर आओ, छोड़ दो नशे को, छोड़ दो आवारा गर्दी को, छोड़ दो गुनाह को। अल्लाह अकबर, हर गुनाह बर्बाद करता है। बुजुर्गों ने कहा जहां गुनाह है वहां फना है, लेकिन नशा कितनी बर्बादी ला रहा है। आजकल तो शरीफ कहलाने वाले लोग भी अल्लाह अकबर कोई गोलियों का नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन का नशा कर रहा है, कोई खांसी की दवा के बहाने नशा कर रहा है। याद रखना मेरे भाई, पेशाब को शरबत का नाम देने से कभी पेशाब शरबत नहीं होता। अल्लाह अकबर, गलाजत को दूध का नाम देकर पीने से कभी गलाजत दूध नहीं बन जाता। और मेरे आका ने तो पेशिन गोई फरमाई, ये तो हुजूर का गैब है, गैब। आका इरशाद फरमाते हैं कयामत के करीब लोग शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। देख लो नाम बदले जा रहे हैं, मगर नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने कहा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह नशा है। अब दलील पेश कर रहे हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मैंने सुना कि बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह था। उस बादशाह ने एक नेक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कहा कि या तो तुम सूअर खाओ, सूअर का गोश्त तुम खाओ, खिंजीर का गोश्त खाओ, या फिर तुम जो है वो ज़िना करो, या फिर जो है किसी को कत्ल करो, या फिर जो है वो अल्लाह अकबर तुम जो है शराब पियो। तवज्जो फरमाए, चंद चीजें रखी बादशाह, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रावी है कि सबसे बड़ा गुनाह नशा क्यों है? दलील पेश कर रहे हैं। फरमाते बनी इसराइल के बादशाह ने एक नेक आदमी को गिरफ्तार करके कहा या तो सूअर का खिंजीर का गोश्त खाओ, या तो तुम किसी को कत्ल करो, या तो तुम ज़िना करो, या फिर तुम शराब पियो, नशा करो। उन्होंने सोचा सूअर का गोश्त नहीं खा सकते, खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकते, ज़िना नहीं कर सकते, किसी को कत्ल करना भी अच्छी बात नहीं, सबसे आसान क्या लगा? शराब पीना आसान लगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने आस कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उस शख्स ने जो है वो शराब पी ली, और शराब पीने के बाद उसको जब नशा हुआ तो नशे से पहले जिस सूअर के गोश्त को वो नफरत की नजर से देख रहा था, जिस जिना को वो नफरत की नजर से देख रहा था, जिस कत्ल को वो नफरत की नजर से देख रहा था, जब उसने नशा कर लिया तो सूअर का गोश्त भी खा लिया, नशा करने के बाद जिना भी कर लिया, नशा करने के बाद कत्ल भी कर लिया। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते बताओ जिन गुनाहों
گناہوں کو وہ گناہ سمجھ کے نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، کس بنیاد پر جو ہے اللہ اکبر اس نے جو ہے نشے میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو برباد کیا.